ناظرین آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان قوم سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ 26 سال سے تحریک انصاف کے اصول کبھی تبدیل نہیں کیے. عدلیہ کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلے سے مایوسی ہوتی ہے. سپریم کورٹ کی بیرونی سازش کا جائزہ لینا چاہیے تھا. آپ کو بتائیں کہ عمران خان قوم سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ 26 سال سے تحریک انصاف کے اصول کبھی تبدیل نہیں ہوئے. جبکہ عدلیہ کے فیصلوں کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ عدلیہ کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں. جبکہ گزشتہ روز سپریم کورٹ کے فیصلے پر ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مایوسی ہوئی. سپریم کورٹ کو بیرونی سازش کا جائزہ لینا چاہیے تھا. آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان قوم سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ 26 سال سے تحریک انصاف کے اصول کبھی تبدیل نہیں ہوئے. سپریم کورٹ کے فیصلے پر ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مایوسی ہوئی ہے. سپریم کورٹ کو بیرونی سازشوں کا جائزہ لینا چاہیے تھا. آپ کو بتائیں کہ عوام سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مایوسی ہوئی. وزیراعظم عمران خان قوم سے خطاب کر رہے تھے. وزیراعظم عمران خان قوم سے خطاب کر رہے تھے. آپ نے جانا. اب رخ کرتے ہیں علاقائی خبروں کا. تو آپ کو بتائیں کہ صادق آباد میں ڈاکوؤں نے دن دہاڑے فائرنگ کر کے 2 پولیس رضاکاروں کو قتل کر دیا. رضاکار باپ بیٹا گھر سے تھانے بھونگ جا رہے تھے کہ راستے میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا. تھانہ بھونگ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی. اس موقع پر اہل علاقہ کا کیا کہنا تھا یہ سنتے ہیں. موضع پیر حسین آباد، نور محمد آباد، شیر محمد آباد، موضع داؤلا تقریباً 3 مہینے سے روٹین خراب ہو گیا ہے. ابھی تک کچے میں کوئی ریت نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، کوئی ریت نہیں ہوا ہے. جو گندم پر جاتے ہیں اندر بھتا دے کر بعد میں جاتے ہیں. ایسے ابھی قانون جو چل رہا ہے پولیس کا قانون نہیں چل رہا ہے. پولیس کا موقف ابھی دیکھیں گے جو یہ ہمارے ساتھ کر کیا رہا ہے. اپیل ڈی پی او صاحب، اے جی صاحب، ہم ان سے اپیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈی اے جی، آر پی او، ڈی پی او، ان سے ہم ہاتھ جوڑ کر. مریدکے میں نامعلوم ملزموں کی فائرنگ سے ایک نوجوان جاں بحق جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا. لواحقین کا ناش جی ٹی روڈ پر رکھ کر پولیس کے خلاف احتجاج. گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگ گئیں. زخمی راہگیر کو ریسکیو ٹی ایچ کیو اسپتال میں منتقل کر دیا گیا. مقتول کی شناخت حنیف سرا کے نام سے ہوئی جو ناندہ درینہ دشمنی بتائی جا رہی ہے. انصاف کی یقین دہانی کروانے کے بعد ایس پی انویسٹیگیشن شیخوپورہ ناصر باجوہ نے روڈ پر ٹریفک بحال کروا دی. خونی کھیل ون ویلنگ کے خلاف سیالکوٹ میں پولیس کے کریک ڈاؤن. 25 منچلے گرفتار. موٹر سائیکلز بند. مقدمات درج کر لیے گئے. اس موقع پر ڈی پی او سیالکوٹ محمد حسن اقبال کا کہنا ہے کہ ون ویلنگ موت کا کھیل ہے جس سے سینکڑوں ماؤں کی گودیں اجڑ چکی ہیں. آپ کو بتائیں کہ ڈی پی او سیالکوٹ محمد حسن اقبال کی ہدایت پر پولیس نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں سحری کے وقت سڑکوں پر ادھم مچاتے ہوئے ون ویلنگ، ریسنگ اور سٹنٹ بازی جیسے خطرناک کرتب کرتے ہوئے دوسروں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے والے منچلے نوجوانوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 25 افراد کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کر دیا ہے. ملزموں سے ون ویلنگ میں استعمال ہونے والے موٹر سائیکلز تحویل میں لے کر مقدمات درج کر لیے گئے ہیں. ڈی پی او کا کہنا ہے کہ پولیس اس طرح خطرناک کھیل کو روکنے کے لیے بھرپور عزم کے ساتھ مصروف عمل ہے تاکہ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھیں. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ مملکت خداداد میں اقلیتوں کو بھی برابری کے حقوق حاصل ہیں. ہم سب مل کر پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرتے رہیں گے. مزید جانتے ہیں راشد محمود کی رپورٹ میں. پاکستان میں اقلیتوں کو بھی برابری کے حقوق حاصل ہیں. ہم سب مل جل کر رہتے ہوئے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرتے رہیں گے. ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب کا نیلم کالونی کا دورہ. نیلم کالونی کے قدیم مندر کا دورہ کیا. مرمتی کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے کام کی رفتار کو تیز کرنے کی ہدایت جاری کر دی. اس موقع پر ہندو برادری اور پیپلز پارٹی اقلیتی ونگ کے عہدیدار بھی موجود تھے. ہندو برادری نے ہولی کے موقع پر ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب کو مندر کی بحالی کی درخواست کی تھی. مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ مجھے خوشی ہے کہ قدیمی مندر کی بحالی کا کام جاری ہے. یہ وہ مندر ہے جو قیام پاکستان سے پہلے موجود ہے.
اقلیتی برادری کی عبادت گاہوں کا تحفظ اور ان کی ازسر نو تعمیر ہمارا فرض ہے۔ ارشد محمود مغل کوہن۔ ڈیرہ غازی خان میں میونسپل ورکرز انصاف یونین کی طرف سے حقوق کے حصول کے لیے مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاج میں میونسپل ورکرز کی کثیر تعداد میں شرکت، مظاہرین نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ فوری طور پر مطالبات پورے کیے جائیں، بصورت دیگر احتجاج جاری رہے گا۔ مطالبات میں 38 ماہ سے کلوز ڈے، بروقت تنخواہوں کی ادائیگی، تبادلے اور بروقت برطرف ملازمین کی بحالی شامل ہیں۔ جناح گیٹ سے نیشنل انڈسٹریل پارک تک روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ پاکستان سٹیل ملز پل سمیت روڈ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ مزید جانتے ہیں کراچی سے راجہ بلوچ کی رپورٹ میں۔ پاکستان سٹیل مل تباہی کے دہانے پر جناح گیٹ سے نیشنل انڈسٹری پارک تک روڈ ٹوٹ پھوٹ اور بدحالی کا شکار۔ پاکستان سٹیل مل پل سمیت روڈ تباہی کے دہانے پہنچ گیا۔ جناح گیٹ سے لے کر عائشہ سٹیل مل چورنگی تک روڈ ٹوٹ پھوٹ اور بدحالی کا شکار ہو گیا، جس کے باعث حادثات روز کا معمول بن گئے۔ پاکستان سٹیل مل نیشنل انڈسٹریل پارک اور پرائیویٹ کمپنیوں کو نیشنل ہائی وے روڈ سے ملانے والا واحد فلائی اوور اس وقت ٹوٹ پھوٹ اور خستہ حالی کا شکار ہو گیا ہے۔ پل پر ایک ٹریک مکمل تباہ ہو چکا ہے اور اس کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا تو بہت جلد دوسرا ٹریک بھی تباہ ہو جائے گا۔ سٹیل ملز کے اس پل سے ہیوی ٹریفک کے ساتھ پرائیویٹ کمپنیوں کے ہزاروں گاڑیاں روزانہ معمول کے مطابق گزرتی ہیں، جو کہ کسی بھی وقت حادثہ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس وقت نہ تو کوئی ادارہ اور نہ ہی سٹیل ملز انتظامیہ اس پل کو بنانے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ سٹیل مل انتظامیہ نے پل پر دن کے وقت اپنی سیکیورٹی کھڑی کر دی اور سیکیورٹی بار لگا دی۔ عمران خان کے ساتھ تھا، ہوں اور رہوں گا، مسلم لیگ نون کے منحرف ایم پی اے میاں جلیل احمد چرکپوری کہتے ہیں وزیر اعظم کو بیرونی سازش کے تحت ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ آستانہ عالیہ شرق و شریف سے میاں جلیل احمد شرکپوری گزارش کر رہا ہوں، آج سپریم کورٹ کا جو نہایت اہم فیصلہ سامنے آیا ہے، اس پہ ایک گروپ ہے جو خوشیاں منا رہا ہے اور ایک گروپ اس پہ غور و فکر کر رہا ہے، لیکن میری اپنی ایک پولیٹیکل طالب علم کے طور پہ جو اوپینین تھی، اگر یہ فیصلہ آتا کہ تمام پاکستان کے اندر نئے انتخابات ہو جائیں تمام اسمبلیوں کے، تو یہ زیادہ آسان ہونا تھا، اس لیے کہ پارلیمنٹ کو بھی عوام بناتے ہیں اور پارلیمنٹ عدالتوں کو بناتی ہے، آئین پارلیمنٹ بناتی ہے اور پارلیمنٹ عوام بناتے ہیں۔ تو جب ایک کنفیوژن تھی، ایک گروپوں کے درمیان ایک ٹسل تھی، ایک کھینچا تانی تھی، تو عوام کے پاس جاتے اور عوام بہتر فیصلہ کرتے۔ جہاں تک ایک الزام ہے کہ اپوزیشن پارٹیاں جو ہیں وہ امریکن اور بیرونی طاقتوں کے زیر اثر ایکٹیو ہوئی ہیں، یہ تو میرا ذاتی ویژن بھی تھا کہ میاں شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی نہایت کلوز یکدم ہو جانا یہ اپنے آپ نہیں تھا، یہ کسی بڑے نے باہر سے انہیں یقیناً انسٹرکشن دی ہوئی تھی، اور پھر تعلقات تو سب کے باہر ہیں۔ میری ایک اسیسمنٹ پہلے ہی تھی اور بعد میں گورنر سندھ عمران اسماعیل کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم والے شکر کریں ان کو کراچی سے 4 سیٹیں مل گئیں، ورنہ پی ٹی آئی نے کلین سویپ کرنا تھا، جس میں بھی کرپشن کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ مزید جانتے ہیں ارشد محمود مغل کی رپورٹ میں۔ گورنر سندھ ڈاکٹر عمران اسماعیل نے گورنر ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آج ایک اہم دن ہے۔ سپریم کورٹ قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ملکی حالات کے مطابق فیصلہ کرے گی۔ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ منوعاً تسلیم کیا جائے گا۔ اپوزیشن والے وزیر اعظم کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کی وجہ سے الیکشن سے راہ فرار اختیار کر رہی ہے۔ اگر کسی ہوٹل میں اجلاس بلانے سے کوئی سی ایم بنتا ہے تو علیم عادل سے کہوں گا کہ وہ بھی کسی ہوٹل میں اجلاس بلا کر سی ایم بن جائیں۔ اگر ہم کسی پالیسی سے اختلاف کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ اس ملک سے جنگ کرنا ہے، ہم پالیسی کے خلاف ہیں، نہ کہ کسی ملک کے خلاف۔ اس سے پہلے بھی حکمرانوں کو خط موصول ہو چکے ہیں جس میں بھٹو صاحب سر فہرست ہیں، کچھ ایسے بھی تھے جو خط پڑھ کر خاموش ہو گئے۔ ایم کیو ایم والے شکر کریں ان کو کراچی سے 4 سیٹیں مل گئی۔ علیم خان کے جانے کا دکھ نہیں، مگر جو باتیں انہوں نے کی اس کا دکھ ہے۔ الیکشن کمیشن کا کام صرف الیکشن کروانا ہے، اگر وہ تیار نہیں تو استعفیٰ دے دیں۔ حکومت سے باہر جا رہے ہیں، آنے والی حکومت تحقیقات کروائے، فرا گجر تحریک انصاف کا حصہ نہیں۔
किसी पर करप्शन साबित होती है तो इसको सजा दी जाए। रिपोर्ट आपने जानी। अब आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा से मुसर्रत चीमा, आशिया रियाज फतेहाना, सादिया सुहेल, सानिया कामरान समेत कसीर तादाद में खवातीन मेंबरान सूबाई असम्बली की मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। गवर्नर पंजाब समेत तमाम खवातीन MPs का वज़ीर आज़म इमरान खान से इजहार यकजहती। खवातीन MPs ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में कप्तान के साथ खड़े हैं। आपको बता रहे हैं कि गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा से मुसर्रत चीमा, आशिया रियाज फतेहाना, सादिया सुहेल, सानिया कामरान समेत कसीर तादाद में खवातीन मेंबरान सूबाई असम्बली की मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। गवर्नर पंजाब समेत तमाम खवातीन MPs का वज़ीर आज़म इमरान खान से इजहार यकजहती। खवातीन MPs ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में कप्तान के साथ खड़े हैं। रमजान बाजारों में सब्सिडी के तहत सस्ती अशिया की फराहमी का सिलसिला जारी है। डेरा गाजी खान के रमजान बाजारों में खरीदारी के लिए शहरियों का रश। दूसरी तरफ रमजान बाजार में अशिया खुरोनोश की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया भी मुतहरिक है। सेक्रेटरी आपाशी जनूबी पंजाब आमिर खटक ने डिप्टी कमिश्नर हमजा सालिक के हमरा डेरा गाजी खान के रमजान बाजारों का दौरा किया और अशिया की क्वालिटी और स्टॉक का चेक किया। सेक्रेटरी इरिगेशन को रमजान बाजारों बारे तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए आमिर खटक का कहना था कि रहमतों और बरकतों के इस माह मुकद्दस में सस्ती अशिया शहरियों के लिए तोहफा है। हुकूमती सब्सिडी आम शहरियों तक पहुंचाने के लिए इंतजामिया सरगर्म है। अशिया की सप्लाई को बेहतर और किसी चीज की कमी ना आने दी जाए। आवाम की आमद के पेश नजर आटा और चीनी की सप्लाई को बैलेंस किया जाए। रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल डॉक्टर मोइन मसूद ने ओकाड़ा के विजिट किया, जिस दौरान उन्होंने DPO ऑफिस और थाना सदर में तमाम सहूलियात का जायजा लिया। DPO ऑफिस में ऑनलाइन शिकायत के इंदराज का सिस्टम चेक किया। आपको बताएं कि DPO फैसल गुलजार को निगरानी की हिदायत करते हुए तमाम केसेस को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया। बाद अज़ां उन्होंने मालखाना सदर को चेक किया। RPO ने इंचार्ज मालखाना को हिदायत करते हुए कहा कि जो भी अशिया मुकदमा के तौर पर जमा हो इनका रिकॉर्ड तरतीब से मुरतब किया जाए ताकि अदालती अहकामात पर इन चीज़ों की सुपुर्दारी के हवाले से कोई मसाइल दरपेश ना हो। तमाम रिकॉर्ड और सहूलियात को चेक करने के बाद DPO फैसल गुलजार को शाबाश दी और उनकी मेहनत और लगन से अवाम उन्नास के तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर खिराज तहसीन पेश किया। असिस्टेंट कमिश्नर वजीराबाद राना अमजद महमूद ने गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए महंगा गोश्त बेचने वाले कसाबों को भारी जुर्माने किए। मजीद जानते हैं नबदीम अब्बास लक की रिपोर्ट में। श्याम की आमद के साथ ही मुल्क के दीगर शहरों की तरह वजीराबाद में भी मसनूई महंगाई का तूफान बरपा है। असिस्टेंट कमिश्नर राना अमजद महमूद ने शहरियों की शिकायत पर बाजार में मुख्तलिफ कसाबों को चेक किया और कंट्रोल रेट से जायद कीमतें वसूल करने वाले कानून शिकन अनासर को 20,000 रुपये से जायद जुर्माने किए। असिस्टेंट कमिश्नर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी को हुस्साहता कीमतों से लूट मार की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि हुकूमती अहकामात के मुताबिक गिरा फरोशों के साथ आहनी हाथों से निमटा जाएगा। मैं रमज़ान की तक़द्दुस को बहाल रखते हुए हम पूरी तहसील वज़ीराबाद में तमाम रेगुलेटरों को प्राइस इंस्टीट्यूट को बाहर निकाल दी है। वो तमाम मार्केट्स में बाज़ारों में प्राइस चेकिंग कर रहे हैं, जिसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान हुकूमत पंजाब की हुकूमत के मुताबिक लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी दिया जाए और महंगाई को रोका जाए। और इस माफिया को जो महंगाई का मसनूई इन्होंने अपना मनमानी कर रहे हैं, उनको हम हर तरफ से रुकावट डालेंगे। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर के महंगाई के खिलाफ जारी इक़दामात। रिपोर्ट आपने जानी। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि शाहकोट में माह रमज़ान के हवाले से शहरियों के लिए इंतजामिया का अहसन इकदाम। रमज़ान बाजार में अशिया खुरोनोश इर्जा निर्खों पर दस्तयाब हैं। देखिए मियाँ बिलाल की रिपोर्ट। रमजान बाजार का क्या हुकूमत पंजाब का अपने अवाम के लिए ऐसा इकदाम है। सस्ते रमजान बाजार में अवामुन्नास के लिए शेय खुर्दनोश सस्ते दामों और वाफर मिकदार में दस्तयाब है। रमजान बाजार में आटा, चीनी, सब्जियां, फल, दालें और चिकन की आला क्वालिटी ओपन मार्केट से कम कीमत पर मुहैया की जा रही है। इस मौका पर शहरियों का कहना है, रमजान बाजार में खरीदो फरोख्त करने आया हूँ। इधर चीज़ें बहुत अच्छी हैं और म्यारी चीज़ें हैं और बाहर से चीज़ें भी मुनासिब रेट पे मिल रही हैं। मैं यहाँ आके बहुत मुतमिन हूँ। रमजान बाजार में सौदा बेच रहे हैं, बाजार नालों घट रेट से बेच रहे हैं। अच्छी चीज़ लिया के बेची दी है, इंतजामिया भी साडा बहुत अमन कर रही है ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਸੌਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਣ ਡਏ ਆ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਣ ਡਏ ਤੇ ਅੱਛਾ ਵੇਚਣ ਡਏ ਆ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ रमजान बाजार ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। महंगाई के इस दौर में हुकूमत की जानब से दिए जाने वाले रिलीफ पर अवाम मुतमिन नजर आ रही है। इंतजामिया की जानब से अवाम की सहूलियात के लिए रेस्क्यू 1112 मेडिकल कैंप, इंतजारगाह और अवाम की रहनुमाई के लिए शिकायत सेल भी कैंप कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब जाहिद परवेज वड़ाइच का रमजान बाजार और गंदम खरीदारी मरकज का अचानक दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने रमजान बाजार में अशिया की क्वालिटी, अमले की हाजिरी समेत कीमती सब्जियों, चीनी, आटे समेत दीगर स्टॉल्स का जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने अमले को हिदायत करते हुए कहा कि रमजान बाजारों में अशिया की क्वालिटी पर समझौता ना किया जाए। जिला भर के रमजान बाजारों में अशिया जरूरिया मार्केट रेट से 10 से 20% कम कीमत पर दस्तयाब हैं। डिप्टी कमिश्नर ने गंदम खरीदारी मरकज में काश्तकारों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। हिदायत करते हुए कहा कि जिला भर की गंदम खरीदारी मराकज में किसानों को किसी किस्म का मसला दरपेश ना आए। किसानों को बारदाने के हसूल के लिए आसानियां पैदा की जाएं, रकम की अदायगी को बरवक्त यकीनी बनाया जाए। शहरियों की तरफ से रमजान बाजार में बेहतरीन इंतजामात करने पर डिप्टी कमिश्नर को खिराज तहसीन पेश किया गया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर गाजी फिजा मोहसिन का हसनपुर में कायम सस्ता बाजार का दौरा। दुकानों की चेकिंग, गिरा फरोशों पर दुकानदारों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई। मजीद जानते हैं सिरीकोट से मोहम्मद अली मशवानी की रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर हरिपुर में सनौला की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर गाजी फिजा मोहसिन का गाजी बाजार में कीमतों का जांच पड़ताल, गाय का गोश्त, सब्जी, फ्रूट के दुकानों और रमजान सस्ता बाजार में फराम करदा फलों और सब्जियों का मुआयना किया गया। दुकानदारों को हिदायत जारी की गई। तुरबेला मार्ट में DC सहूलत काउंटर का भी दौरा। हसनपुर बाजार में भी सब्जियों, बेकरियों और कसाबियों की दुकानों को चेक किया गया। सरकारी रेट से ज्यादा फरोख्त करने वाले दुकानदारों पर FIR दर्ज की गई। आखिर में असिस्टेंट कमिश्नर गाजी फिजा मोहसिन ने गाजी में पटवार खाना, मियाँ डेयरी, काजीपुर पटवार खाने का इंस्पेक्शन किया गया। मसाइल की निशानदेही की गई और पटवारी हलकों को हिदायत जारी किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर गाजी ने कहा है कि सरकारी रेट से ज्यादा फरोख्त करने वाले दुकानदारों को कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली मशवानी, तासीर रिपोर्टर, सरीकोट। हवेली लखा में भी डिप्टी कमिश्नर रोकाड़ा की हिदायत पर सस्ता रमजान बाजार कायम कर दिया गया, जहां आवाम को कम कीमत पर मेयारी अशिया खुरोनोश फराहम की जा रही हैं। देखते हैं चौधरी अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। पंजाब भर के दीगर शहरों की तरह हवेली लखा में भी डिप्टी कमिश्नर रोकाड़ा अली एजाज के अहकामात पर सस्ता रमजान बाजार सजा दिया गया, जिसमें खुर्दनोश की तमाम अशिया, सब्जियां, फल, आटा, घी, चीनी, गोश्त सस्ते दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। इस मौका पर म्यूनसिपल कमेटी हवेली लखा के फाइनेंस ऑफिसर मियाँ रफीक अहमद भट्टू ने कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आटा जो मार्केट में सेल हो रहा है 550 रुपये वाला बैग, वो हम 450 रुपये में सेल कर रहे हैं। जो चीनी मार्केट में 80 रुपये, 90 रुपये और 100 रुपये, हम वो 80 रुपये में सेल कर रहे हैं। बाज़ार में गोश्त का रेट जो है वो 360 रुपये, हम इधर 300-320 रुपये सेल कर रहे हैं। और सब्ज़ी फ्रूट हमारे पास म्यारी और आला क्वालिटी का है और हम दे उसको मार्केट रेट से बहुत कम रेट पे दे रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ चौधरी अब्दुर्रहमान।
डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया ने मॉडल बाजार में कायम रमजान बाजार का दौरा किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी और दीगर मुतल्लिका स्टाफ भी मौजूद थे। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस खुसूसी रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया ने मॉडल बाजार बहावलपुर में कायम रमजान बाजार का दौरा किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सिटी, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी और दीगर मुतल्लिका स्टाफ मौजूद था। डिप्टी कमिश्नर ने रमजान बाजार में कायम आटा, चीनी, एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप, चिकन, मटन, बीफ, दीगर एशिया खुदनोश के स्टॉल पर गए और एशिया खुदनोश की क्वालिटी का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर रमजान बाजार में आए हुए अफराद से मुलाकात की और उनसे एशिया खुदनोश के नर्ख, क्वालिटी और रमजान बाजार में दस्तयाब सहूलत बारे पूछा। उन्होंने सार्फिन को बताया कि हुकूमत की जानिब से रमजान बाजार में आटे का थैला 450 रुपये फी 10 किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है और चीनी, चिकन, अंडे और एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप में 13 मुख्तलिफ एशिया खुदनोश पर सब्सिडी दी गई है। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने मुतल्लिका अफसरान और स्टाफ को हिदायत की कि वो अपनी जिम्मेदारियां शानदार अंदाज में अंजाम दें ताकि सार्फिन रिलीफ हासिल कर सके। डिप्टी कमिश्नर रमजान बाजार में कैंप, मेडिकल कैंप का भी मुआयना किया और अद्वियात का स्टॉक चेक किया। उन्होंने रमजान बाजार में सफाई के इंतजाम का भी जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर सेहवन शरीफ अब्दुल रहीम कुरैशी का भान सईदाबाद का दौरा, फल, सब्जी, मुर्गी के गोश्त समेत दीगर स्टॉल्स पर रेट्स मालूम किए और शहरियों से भी रेट्स के मुतालिक मालूमात हासिल की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल रहीम कुरैशी ने कहा कि रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में अशिया खुर्नोश की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकारी रेट लिस्ट रोजाना की बुनियाद पर अपडेट की जा रही हैं ताकि मुसलमानों को रमजान मुबारक में रिलीफ फराहम किया जा सके। दुकानदारों से शहरी सरकारी रेट लिस्ट से मुताबिक खरीदारी करें। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हरीपुर सूबाई हुकूमत के इक़दामात को मद्देनजर रखते हुए खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे इजला की तरह डिस्ट्रिक्ट हरीपुर में भी जिले इंतजामिया ने फूड डिपार्टमेंट के इश्तराक से सस्ता रमजान बाजार लगाए गए। तफसीलात के मुताबिक सूबाई वजीर खुराक, सेक्रेटरी खुराक, डायरेक्टर खुराक और डिप्टी कमिश्नर हरीपुर की हदायत पर रमजान सस्ता बाजार में गाजी, हरिपुर और खानपुर में सस्ते रमजान बाजार कायम। डिविजनल असिस्टेंट डायरेक्टर ने सस्ता रमजान बाजार का दौरा किया। मजीद जानते हैं राशिद महमूद की रिपोर्ट में। हरीपुर सूबाई हुकूमत के इक़दामात को मद्देनजर रखते हुए खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे इजला की तरह डिस्ट्रिक्ट हरीपुर में भी जिले इंतजामिया ने फूड डिपार्टमेंट के इश्तराक से सस्ता रमजान बाजार लगाए गए। तफसीलात के मुताबिक सूबाई वजीर खुराक, सेक्रेटरी खुराक, डायरेक्टर खुराक और डिप्टी कमिश्नर हरीपुर की हदायत पर रमजान सस्ता बाजार में अवाम अन्नास को सब्सिडाइज आटा 10 किलोग्राम बैग 400 रुपये में फराहम किया जा रहा है। मजीद बराम मार्केट से कम रेट में अशिया खुर्नोश भी दस्तयाब हैं। इसी तरह फ्रूट, सब्जी के अलावा घी, आयल, दालें, गोश्त भी दस्तयाब हैं, जबकि आयल और घी में मार्केट से 50 से 60 रुपये तक कमी की गई है जो कि इंतहाई रियायती नर्ख हैं। डिविजनल असिस्टेंट डायरेक्टर इम्तियाज मोहम्मद खान ने सस्ता बाजार का दौरा किया और बाजार में आए हुए खरीदारों से मालूमात भी ली। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इम्तियाज मोहम्मद खान का कहना था, जबकि हमारा जो फूड डिपार्टमेंट का मेन आइटम है वो है आटे के जो 10 केजी के बैग हैं जो कि 400 रुपये की फी बैग के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। तो उन्होंने ये अरेंजमेंट किया है कि 1200 बैग उन्होंने 20 स्टाफ हरीपुर में प्रोवाइड किए हैं जो बड़ी तासीर भी है और आवाम का आमदरफ्त भी यहाँ पे ज़्यादा है। जबकि 600 बैग उन्होंने तहसील खानपुर के लिए दिए और 600 बैग उन्होंने तहसील गाजी के लिए अरेंज किए हुए हैं। तो आवाम का अच्छा रिस्पॉन्स है। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर शहबाज तारिक ने डिविजनल असिस्टेंट डायरेक्टर इम्तियाज मोहम्मद खान को बाजार के हवाले से मुकम्मल ब्रीफ किया। इस मौके पर असिस्टेंट फूड कंट्रोलर शौकत सुल्तान, AFC परस्तान कुरैशी भी माह सयाम में महंगाई का तूफान, शहरी परेशानी से दो चार, अशिया खुर्नोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मजीद जानते हैं नौशहरा से माजिद खटक की रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह महंगाई का तूफान अपने उरूज पर है। 2018 में जो चीनी 65 रुपए फी किलो था वो 100 रुपए से जायद फरोख्त होने लगी। बनास्पति घी 195 रुपए से 450 रुपए तक जा पहुंचा। आटा 20 किलो का तेल जो 900 रुपए में फरोख्त हो रहा था 1400 रुपए तक जा पहुंचा। पेट्रोल को तो जैसे आग ही लग गई, 95 रुपए से बढ़कर 160 रुपए तक जा पहुंचा। LPG सिलेंडर की बात करें तो 1700 से 21 रुपए तक हो गया। बड़ा गोश्त 400 से बढ़ता हुआ 700 रुपए तक जा पहुंचा। छोटे गोश्त का तो जायका ही भूल जाए। 3 साल के दौरान मुर्गियों के भी खूब पर निकले। 160 रुपए से उड़ती हुई 280 रुपए तक जा पहुंची।
दूध की कीमत में 50 रुपए फी किलो इजाफा हुआ, जबकि टमाटर समेत सब्जियों का भाव सुनकर खरीदारों के कान लाल हो जाते हैं। फ्रूट शॉप्स के पास तो गरीब जाए ही मत। जो चीज खरीदना चाहते हैं पहुंच से बाहर है। अगर सब्जी के पास जाए, फ्रूट लेना है, आटा लेना है, करियाने का सौदा लेना है, एक चीज भी रेट पे नहीं है, रेट से काफी ज्यादा है, चल रहा है, कोई परेशानी हाल नहीं है। महंगाई को किसी तरीके से भी हो कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब जो है ना आराम से अपनी जिंदगी गुजार सके। महंगाई तो गरीब इतनी ज़्यादा है कि हर चीज़ गरीब आदमी के दस्तर से बाहर है। आप गोश्त का पूछें, मुर्गी का पूछें, दाल सब्जी का पूछें, घी आटे का पूछें, जिस चीज़ का भी पूछें वो इंसान के मौत सस्ती और हर चीज़ महंगी है। तो गरीब खानपुर में यूटिलिटी स्टोर्स का अमला अशिया दुकानदारों को फरोख्त करने लगा। कोहिनूर न्यूज ने फुटेज हासिल कर ली। दरबार हुसैन रोड पर कायम यूटिलिटी स्टोर्स का अमला अरसा दराज से स्टोर से घी, चावल, चीनी और दीगर अशिया खुरनोश दुकानदारों को फरोख्त कर रहा है। फुटेज में सामान बाजार में फरोख्त हो रहा है। एक तरफ गरीब अफराद स्टोर पर चीनी, घी, आटा के हुसूल के लिए घंटों कतारों में लगने के बाद खाली हाथ लौट जाते हैं, तो दूसरी तरफ अमले की लूटमार जारी है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील कर दी है। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जंड के नवाही गांव 2 मील में वेलफेयर सोसाइटी का अहसन इकदाम। मोहम्मद इलियास नामी माजूर नौजवान को 4 व्हील मोटर बाइक दी गई है। देखते हैं शहजाद कमर शाकिर की रिपोर्ट। जंड के नवाही गांव दुमेल में दुमेल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक बेहतरीन तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें एक माजूर लड़के मोहम्मद इलियास को जो बचपन से माजूर है 4 व्हील मोटर बाइक दिया गया ताकि वो आकर टेलरिंग का काम सीख कर अपनी ज़िंदगी गुजार सके। दुमेल वेलफेयर सोसाइटी की सरगर्म अमल टीम ने कोहिनूर से बात करते हुए कहा, ये नौजवान पैदाइशी तौर पे माजूर है और इसकी उम्र तकरीबन 22 साल की है। तो मेल वेलफेयर सोसाइटी हमेशा से इस तगदो में रहती है कि कोई ना कोई जो वेलफेयर का काम है वो देखा जाए और उसको तरजीह बुनियादों पर किया। डुमेल वेलफेयर सोसाइटी ये नाम आती पता चलता है कि डुमेल में लोग जिंदा हैं, क्योंकि ये जो मसाइल होते हैं लोगों के, गरीब लोगों के जो मसाइल होते हैं उनको वही लोग पाए तकमील तक पहुँचाते हैं जो जिंदा होते हैं। आज का सोसाइटी के लिए एक इंतहाई खुशकिस्मत लम्हात पे मुश्तमिल है। उनकी हौसला अफजाई के साथ साथ मैं एक पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि अंधेरे को बुरा करने से बेहतर है कि हम अपने हिस्से की एक शमा रोशन कर दें। कैन न्यूज़ और आपका अलियास जिसको आज बाइक मिला, अल्हम्दुलिल्लाह आज इस माशरे में एक ख़ास शहरी और आम शहरी का इसमें फ़र्क। दुमेल वेलफेयर सोसाइटी रमज़ान मुबारक में भी गुरबा में राशन तकसीम कर रही है। कैमरामैन नदीम के साथ। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा से मुसर्रत चीमा, आशफा रियाज फतेहाना, सादिया सुहेल, सानिया कामरान समेत कसीर तादाद में खवातीन मेंबरान सूबाई असम्बली की मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। गवर्नर पंजाब समेत तमाम खवातीन MPs का वज़ीर आज़म इमरान खान से इजहार यकजहती। खवातीन MPs ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में कप्तान के साथ खड़े हैं। आपको बता रहे हैं कि गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा से मुसर्रत चीमा, आशफा रियाज फतेहाना, सादिया सुहेल, सानिया कामरान समेत कसीर तादाद में खवातीन मेंबरान सूबाई असम्बली की मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी गई। गवर्नर पंजाब समेत तमाम खवातीन MPs का वज़ीर आज़म इमरान खान से इजहार यकजहती का इजहार। खवातीन MPs ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में कप्तान के साथ खड़े हैं। इंडस मनावा अस्पताल में आलमी यौम सेहत के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। मजीद देखिए हाफिज इरफान की रिपोर्ट।
عالمی یوم صحت کے حوالہ سے ہماری زمین ہماری صحت کے تحت انڈس اسپتال منامہ کی عملہ نے آگاہی سیمینار میں صاف آب و ہوا، صاف غذا اور صحت مند ماحول کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔ یوم صحت کے حوالہ سے تقریب کے مقررین مریضوں اور عملہ کی آگاہی کے سلسلہ میں مختلف موضوعات پر زیر بحث رہے۔ ان میں یرقان کی بیماری کی آگاہی نرسنگ انچارج مس فرح ناز، متاثرہ غذا سے ہونے والی بیماریوں سے آگاہی ماہر غذا مس آمینہ، پانی صفائی ستھرائی کے بارے میں انفیکشن کنٹرول سے احسان اللہ میر اور موسمیاتی تبدیلی کے موضوع پر اسپتال ایڈمنسٹریشن سے عمران علی نے لب کشائی کرتے ہوئے سامعین کو عالمی یوم صحت کے تھیم ہماری زمین ہماری صحت پر تفصیلی آگاہی دی۔ اس آگاہی سیمینار کی صدارت مس شرمین ضیاء رخ نے کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی عالمی ادارے صحت پنجاب کے سربراہ ڈاکٹر جمشید کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پاکستان کے مستقبل کے پیش نظر ہر شہری کو ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ عالمی ادارے لاہور سے ڈاکٹر عرفان اس موقع پر ان کے ہمراہ موجود تھے۔ انوائرمنٹ پروٹیکشن اتھارٹی سے انسپیکٹر ساجد نے ماحولیاتی آلودگی کے سلسلہ میں کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا اور عوام کو اپنا مثبت کردار ادا کرنے کی گزارشات کی۔ تقریب کے اختتام پر ہیڈ آف کیمپس ڈاکٹر محمد فہیم انور نے صحت مند ماحول پیدا کرنے میں میڈیا کے مثبت کردار، مقررین کی داد رسی، مہمان آنے گرامی اور فیکلٹی کا شکریہ ادا کیا۔ کیمرہ مین رپورٹ آپ نے جانی۔ اب آپ کو بتائیں کہ سی ای او LWMC رافع حیدر کی ہدایت پر رمضان پلان کے مطابق 175 جامع مساجد کے واشنگ کا ٹاسک مکمل کر لیا گیا۔ شہر کے 32 رمضان بازاروں میں صفائی ستھرائی اور پانی کا چھڑکاؤ جاری ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سی ای او LWMC رافع حیدر کی ہدایت پر رمضان پلان کے مطابق 175 جامع مساجد کی واشنگ کا ٹاسک مکمل کر لیا گیا ہے۔ شہر کے 32 رمضان بازاروں میں صفائی ستھرائی اور پانی کا چھڑکاؤ بھی جاری ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں سی ای او LWMC رافع حیدر کی ہدایت پر رمضان پلان کے مطابق 175 جامع مساجد کی واشنگ کا ٹاسک مکمل کر لیا گیا ہے۔ اسی بارے میں مزید ڈیٹیل جانیں گے، رپورٹر کامران علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کامران علی، آگاہ کیجیے گا۔ جی، یہ سی ای او لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی رافع حیدر کے احکامات کی روشنی میں LWMC نے رمضان پلان کے مطابق 175 جامع مساجد کی واشنگ کا ٹاسک مکمل کر لیا۔ شہر کے 32 رمضان بازاروں میں صفائی ستھرائی کا اور پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے۔ گلبرگ میں 25، نشتر ٹاؤن 30، داتا گنج بخش ٹاؤن 30، علامہ اقبال ٹاؤن 10، سمنا آباد میں 10 جامع مساجد کی واشنگ کی جا چکی ہے۔ اسی طرح راوی ٹاؤن میں 25، شالیمار ٹاؤن میں 14، واگا ٹاؤن 14 اور عزیز بٹی ٹاؤن میں 17 جامع مساجد کی واشنگ کا جو کام ہے اس کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ LWMC رمضان پلان 2022 کے مطابق آخری اشرے میں تمام مساجد کی دوبارہ واشنگ کا عمل جو ہے اس کو دہرایا جائے گا۔ شادمان رمضان بازار، برکت مارکیٹ، گلشن راوی، وحدت کالونی، نشتر رمضان بازار اور دیگر رمضان بازاروں میں پانی کا چھڑکاؤ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ جی کامران علی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ ڈپٹی کمشنر لاہور اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کی ہدایت پر ایکشن۔ اسسٹنٹ کمشنر شالیمار ذیشان ندیم نے ہربنس پورہ میں قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے سرکاری اراضی واگزار کروا لی ہے۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ لاہور کی تحصیل شالیمار کے موضع ہربنس پورہ میں سرکاری اراضی پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا گیا۔ گرینڈ آپریشن کے دوران 3 مختلف مقامات پر آپریشن کر کے بھاری مالیت کی سرکاری اراضی کو واگزار کروا لیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر 1,90,00,000 روپے کی 1 کنال 4 مرلہ سرکاری اراضی کو واگزار کروایا گیا ہے۔ پہلے آپریشن میں تقریباً 1 کروڑ مالیت کی 15 مرلہ سرکاری اراضی کو واگزار کروایا گیا ہے اور اس کی باؤنڈری کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ یہ کارروائی ابو بکر کالونی نزد ریلوے کراسنگ جلو میں کی گئی ہے۔ دوسرے آپریشن میں 50 لاکھ مالیت کی 5 مرلہ سرکاری زمین کو واگزار کروایا گیا ہے اور یہ کارروائی سبحان گارڈن میں ایک 5 مرلہ گھر کو مسمار کر کے کیا گیا ہے۔ تیسرے آپریشن میں 40 لاکھ کی تقریباً 4 مرلہ سرکاری زمین کو واگزار کروایا گیا ہے۔
असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार जिशान नदीम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि जुम्मेदारान के खिलाफ FIR का अंदराज भी किया जा रहा है। सरकारी जमीन पर नजायज कब्जा की हरगिज इजाजत ना दी जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार जिशान नदीम ने मजीद कहा कि DC लाहौर उमर शेर चट्ठा की हदायत पर ऑपरेशन किया गया। रेनाला खुर्द में सस्ता रमजान बाजार, शहरियों को रिलीफ की फराहमी जारी है। सारिफिन को अशिया खुरनोश सरकारी निर्खों पर दस्तयाब हैं। देखिए चौधरी इमरान की रिपोर्ट। हुकूमत पंजाब की जानब से रेनाला खुद में भी सस्ता रमज़ान बाजार सज गया। सस्ता रमज़ान बाजार में ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम अशिया सस्ते दामों फरोख्त की जा रही हैं। सस्ता रमज़ान बाजार में चीनी 1 किलो 80 रुपए किलो, आटे का 20 किलो का थैला 900 रुपए में, दाल चना 101 रुपए में, बेसन 1 किलो 102 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। सस्ता रमज़ान बाजार में मार्केट की निस्बत सस्ता रमज़ान बाजार में दालें 50 रुपए फी किलो रेट कम पर फरोख्त की जा रही हैं। आटे का थैला 900 रुपए में 20 किलो का फरोख्त किया जा रहा है। चेयरमैन मार्केट कमेटी जहीर बाबर चौधरी, नैब तहसीलदार मोहम्मद अजहर ने सस्ता रमज़ान बाजार का विजिट किया, फलों सब्जियों की क्वालिटी को चेक किया और मार्केट कमेटी के एहलकारों को हदायत की कि अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाए। अवाम को रिलीफ फराहम करना हमारी अवलीन तरजीह है। नाज़रीन, खिपरू के बटाई हाल में रोज़े धनी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 120 मुस्तहिकीन में रमज़ान राशन तकसीम किया गया। देखते हैं अब्दुल रज़ाक राजपूत की रिपोर्ट। बिटाई हाल खिपरों में रोजे धनी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से गरीब मुस्तहिक 120 खानदानों में रमजान राशन तकसीम किया गया। इस मौके पर रोजे धनी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के रहनुमा गुलाम अली राजड़ इकबाल राजड़ ने कोहिनूर न्यूज़ से बात करते हुए कहा, रोजे धनी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद ये है कि आज आपने पता है मुल्क में महंगाई ज्यादा है, गरीब लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और एक शरबत की बोतल भी खरीद नहीं पा रहे हैं, घी का 1 किलो भी खरीद नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि हमने डोनेशन की है रोजे धनी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म पे। अल्हम्दुलिल्लाह 120 फैमिलियों को आज हम राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। रोजे धनी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के बानी कायद इकबाल राजड़ और उसकी पूरी टीम को मैं सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने एक एक फुड़ी इकट्ठी करके इन लोगों के लिए ये राशन बैग बनाया। 27 kg का ये बैग बता रहे हैं, जिसमें 5000 रुपये का राशन है। बहुत अच्छा इवेंट है इन लोगों के लिए। मैं तो ये चाहूँगा कि खिपरों के जो भी मुखीर हजरात हैं ये भी कर सकते हैं और इंटरनेशनल NGOs जो भी यहाँ काम कर रही है डिस्ट्रिक्ट में वो भी ये कर सकती हैं। आज हम रोजे धनी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की टीम जो है तालका खिपरों की वो मुस्तकीन और जो गरीब हजरात हैं उसमें रमज़ान राशन पैकेज दे रहे हैं। 120 फैमिलीज़ को आज हम ये राशन दे रहे हैं। इससे पहले हम 130 फैमिलीज़ को दे चुके हैं अशरो थरकी के लिए और हम उस मखीर हजरात के शुक्रगुजार हैं जिस लोगों ने हमारे साथ तावन किया। रमजान का महीना बरकतों वाला महीना है, इसमें गरीब और मुस्तहिक लोगों की जितनी भी मदद की जाए वो कम है। खानेवाल में डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोहदी का एहसन इकदाम, मुस्तहिक और माजूर अफराद में इमदादी चेक तकसीम किए गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद अख्तर ने मुस्तहिक अफराद में चेक्स तकसीम किए। असिस्टेंट कमिश्नर इकरा मुस्तफ़ा, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मोहम्मद नाइम और दीगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि माली इमदाद ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से माजूर अफराद के लिए रमज़ान का तोहफ़ा है। उन्होंने कहा कि माजूर अफराद सलाहियतों में किसी से कम नहीं है, थोड़ी सी तवज्जो देकर इन्हें मुआशरे का कारआमद फर्द बनाया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि सरकारी निजी इदारों में मुलाजमतों के 3% कोटे पर अमल यकीनी बनाया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर भेरा सारा की हिदायत पर तहसीलदार मलिक फहीम अरशद आवान और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट महर खिजर हयात हरल ने शहर का दौरा किया और अशिया ज़रूरिया के निर्ख और क्वालिटी चेक की। उन्होंने रमज़ान ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी पर दही भल्ले और बिरयानी सरेआम फरोख्त करने वालों को जुर्माने किए। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।